السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ پاک تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ پاک ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا۔ اللہ پاک تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ پاک تمہیں اپنے عشق میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک کو تم بہت پسند آ گئے ہو، وہ تمہیں اپنے پسندیدہ محبوب بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر ایک طوفان، ہر ایک امتحان تمہارے لیے بہتری کے معجزے لاتا ہے۔ اللہ پاک تمہارے ساتھ اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ امید نہ چھوڑنا کہ تمہارا وہی اللہ پاک ہے جو حضرت ہاجرہ کا تھا۔ اس نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو پیاسا نہیں رکھا، وہ تمہاری التجا بھی رد نہیں کرے گا، تو پھر نہ امید مت ہو۔ سنو، وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقد معلوم ہو جائے تو تمہارا جور اللہ پاک ہو جائے۔ اس احساس محبت سے بس تم ایک کام کر لو کہ راضی ہو جاؤ، اس کے فیصلوں پر، اس کی مصلحتوں پر جھک جاؤ، اس کی رضا کے آگے، کیونکہ جو جھک نہ سکا وہ پا نہ سکا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ کس چیز سے پاک کبھی سوچا ہے؟ وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ وہ یوں تمہاری ہر رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا۔ وہ خود تم سے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں اور اس کے لفظوں سے سچا اور کوئی نہیں۔ وہ اپنے وعدوں کا پکا ہے، وہ جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی نہیں موڑ سکتا نہ روک سکتا ہے۔ اللہ پاک کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو، وہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ پاک بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو بس اتنا یقین رکھو کہ جسے تم اپنا تام سمجھ رہے ہو اسے وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ پاک کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ اللہ پاک قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پاک ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اللہ پاک صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ بے بس تم ہو، تمہارا رب نہیں۔ محتاج تم ہو، تمہارا رب نہیں۔ ناممکن تمہارے لیے ہے، تمہارے رب کے لیے نہیں۔ اللہ پاک تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ پاک کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ پاک کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ پاک کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف
तुम में तुम्हारा सब्र तुम्हें उन मकामात तक पहुंचा सकता है जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते, और इसके लिए तुम्हारा यह जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा, यह कैसे होगा। यह काम तुम अल्लाह पाक पर छोड़ दो। तुम्हारा काम बस यकीन रखना है। मुमकिन से लेकर नामुमकिन तक, हासिल से लेकर ला हासिल तक रोशनी और मौज तुम में छुपे होती हैं और उन्हें तुमने खुद ही ढूंढना होता है। इस दुनिया में हासिल ना हासिल कुछ है ही नहीं। ऊपर वाली जात जब तक आपका साथ नहीं देती तब तक आप बेबस, लाचार, मजबूर महसूस करते हैं। अल्लाह पाक तो आपको सब मिल सकता है, अगर वो चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। खुद को अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दें, फिर जो चीज आपको पसंद है, जिस वक्त आपको चाहिए, आपकी झोली में बगैर कहे डाल दी जाएगी। दुआएं तो चांद को भी दो टुकड़ों में तकसीम कर देती हैं। उनकी ताकत के सामने तुम्हारी ये छोटी सी ख्वाहिश बहुत बेमायने है। जब तुम सजदा करते हो तो मोहब्बत का हक अदा करते हो, और जब दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो यकीन का हक अदा करते हो, और मोहब्बत का तो यकीन के बगैर कोई वजूद नहीं। जिस नमाज में दुआ शामिल ना हो वो नमाज हमेशा अधूरी रहती है। फिर नमाज अधूरी रखकर ख्वाहिशों के मुकम्मल होने की तलब कैसी। नमाज तहज्जुद अल्लाह पाक के कुर्ब हासिल करने और अल्लाह पाक से राज नियाज की बातें करने का बेहतरीन वक्त होता है। अल्लाह पाक को इंसान का नींद से बेदार होकर उसके सामने सजदारेज होना और आंसुओं के मोतियों से अपनी इल्तिजा, अपनी दुआएं तलब करना बहुत पसंद है। यही वो वक्त होता है जब इंसान को मुकाम से नवाज दिया जाता है। अल्लाह पाक को मालूम होता है कि उसका बंदा कब उसे पुकारेगा, कब उसकी तरफ दौड़ कर जाएगा, कब बेचैन होकर या अल्लाह पाक बुलाएगा। तुम्हारा कभी सुनी है ऐसी मोहब्बत जो फजर से जरा पहले 7वें आसमान पर नूर की मानिंद होती हैं, खुद पुकारती हुई दुआएं कबूल करने के लिए तुम्हें बुलाती हुई, और तब जो उसकी आवाज पर लब्बैक कहते हैं उनके लिए वो अल्लाह पाक से मेरे प्यारे अल्लाह पाक बन जाता है। दोस्त, मददगार, सुनने वाला, गम दूर करने वाला अल्लाह पाक तहज्जुद वो तमाम मोजज़े करवा सकती है जिनके मुतालिक दुनिया वाले कहते हैं हम आम इंसान हैं, हमारे लिए कहाँ होंगे ऐसे मोजज़े। वो शायद भूल जाते हैं कि वो रब मोजज़े करने पर कादिर है और वो हम आम इंसानों का भी रहमान रब है। तहज्जुद ऐसी नमाज है कि जिसको इस नमाज की आदत हो जाए और अगर वो किसी दिन तहज्जुद न पढ़ पाए तो सारा दिन कुछ कमी कमी से महसूस होती है। तुम क्यों घबराते हो मुकद्दर के फैसलों पर कि तुम नहीं जानते तुम्हारा रब गफूर रहीम है। वो अगर रात को दिन और दिन को रात करने पर कादिर है तो क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले बदल नहीं सकता। वो कभी तुमसे गाफिल नहीं होता, वो तो बस तुम्हें आजमाता है कि मेरा बंदा या मेरी बंदी मोहब्बत में सब्र की किस हद तक जाती है, और जब वो राजी हो जाता है तो कुन फरमा देता है और मुकद्दर सभी बदल जाते हैं। तुम्हारी अल्लाह पाक से लगाई उम्मीदों पर अपनी सोचों के बांध न बांधो। वो तो रब्बे करीम है, वो जिसने तुम्हें उन दुआओं की तौफीक अता फरमाई है, वही उस चीज को तुम्हारी तकदीर के सफों में शामिल करने पर भी कादिर है। बस पूरे मखली दिल के साथ उसकी रहनुमाई और उसका करम तलब करते रहो, वो तुम्हारे सब काम सवार देगा। वो खामोशियां भी सुन लेता है लेकिन उसे इजहारे पसंद है बंदे का। जब बंदा कहता है ऐ मेरे रब तो वो मुतवज्जो हो जाता है। जब बंदा कहता है तू बड़ा रहीम है तो उसकी रहमत जोश में आ जाती है। जब बंदा कहता है अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे तो वो माफ कर देता है, और जब बंदा गिड़गिड़ा कर कुछ मांगता है तो वो कबूल कर लेता है। तहज्जुद तक तो अल्लाह पाक लेकर जाता है क्योंकि तुम्हारी दुआओं पर कुन फयाकुन की मोहर लगनी होती है। तभी तो कहते हैं तहज्जुद तो सफर है कुन से फयाकुन तक का। खूबसूरत कहानियाँ हकीकत यूं ही नहीं बन जाती, इनमें सब्र, तबक और दुआएं बेमिसाल होती हैं। आसमान से नुज़ूल मोजिज़ों का होता है। जब हर तकलीफ, गम, दुख
मिटा दिए जाते हैं। मान लो, जान लो, सर तस्लीम खम कर लो उस पर की मांगी जो दुआ जाए तहज्जुद में अगर कबूलियत के तोहफे संग अपने जरूर लाती है। हजारों गम सहने के बाद तहज्जुद का एक सजदा नसीब में लिखा जाता है और वो सजदा करने वाला अल्लाह पाक का सबसे पसंदीदा बंदा होता है, जिसको वो अनगिनत लोग में से चुन लेता है, जिसकी मुलाकात के लिए वो खुद इंतजाम करता है। रस्क आता है मुझे उस शख्स के मुकद्दर पर जिसकी एक पुकार सुनने के लिए वो सारा आलम खामोश करवा देता है, जिसके दीदार के लिए वो आसमान को स्याही से भर देता है और चारों तरफ से अंधेरा कर देता है, ताकि उसके बंदे के आंसू कोई तीसरी जात ना देख सके, ताकि उसके बंदे के जज्बात की खुददारी पर पर्दा पड़ा रहे। सबको बेफिक्र की नींद सुलाकर वो अपने उस खास बंदे को अपनी जुस्तजू की फिक्र लगा देता है। ताखरा वाली उसको तहज्जुद में ढूंढ लेता है। वो जो दोनों जहानों में समा नहीं पाता, वो फिर इस टूटे हुए दिल में समा जाता है। तुम सोचते हो आजमाइश का वक्त बहुत लंबा हो गया है, मगर दर हकीकत मुलाकात का वक्त बढ़ा देता है। अल्लाह पाक को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो, जब तुम सब खत्म हो जाने के बाद भी इस यकीन के साथ दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, जब तुम सजदों पर सजदे करते हो, जब तुम सांस लिए बगैर बेसाख उसका नाम पुकारने लगते हो, तब वो तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, तब वो तुम्हारे यकीन का भ्रम रख लेता है और तुम्हारे मान की लाज रख लेता है, सारे वसवसों को खत्म कर देता है। उसकी मुस्कुराहट दिखाई नहीं देती, मगर महसूस करो तो रंगों में उसकी मोहब्बत का रंग खून की मानिंद दौड़ने लगता है। उससे बेहतरीन लिखारी तो कोई हो ही नहीं सकता, जो इख्तियार रखने के बावजूद नसीब के पन्नों को अपनी चाहतों से तुम्हारी चाहत में बदल देता है। वो बादशाहों का बादशाह होकर भी तुम्हें सुनता है और एक तुम हो कि फर्ज होने के बावजूद भी उसकी पुकार का जवाब नहीं देते। कभी उसकी मोहब्बत में रंग कर तो देखो, कायनात के सारे रंग भी फीके लगने लगेंगे। कभी उसको सुनकर तो देखो, कायनात की सारी आवाजें बेमायने लगने लगेंगी। वो जिसको चाहता है अपनी जानिब मोड़ लेता है, चुपचाप, और किसी को खबर भी नहीं होती। बस फिर वो एक हुक्म देता है और कायनात की सारी ताकतें मुतहर हो जाती हैं। कुन उसके घर तवाफ करने लगता है और सारी बातें फयाकुन पर खत्म हो जाती हैं। यूं सभी कहानियां मुकम्मल हो जाती हैं। कभी आंसू, कभी सजदे और कभी हाथों का उठ जाना। इंसान जब टूट जाता है तो अल्लाह पाक बहुत याद आता है। सब्र करो, यकीन रखो, मायूस दिलों के लिए मोजज़े नहीं होते। अपने दर्द को अल्लाह पाक से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और रब जाने, वो अपने एक हुक्म से हर शय बदल देता है। जिसके लिए दिल मुतमैन नहीं होता, मैंने अधूरी तमन्नाओं का हल सजदों में पाया। तहज्जुद नाम है उस सुकून का जिसमें मेरी अल्लाह पाक से तवील गुफ्तगू होती है। एक वही तो है जो तुमसे बेजार नहीं होता, वो तुम्हें सुनता है और बहुत गौर से सुनता है। अल्लाह पाक अपने बंदे की तड़प कभी भी जाया नहीं करता, नदामत भरा एक आंसू, और रब आपका उम्मीद कभी मत छोड़ना। कमजोर तुम हो, तुम्हारा अल्लाह पाक नहीं। इंसान की सबसे बड़ी हिजरत गुनाहों से नेकी की तरफ हिजरत है। जब सारी दुनिया मुंह फेर लेती है, उस वक्त भी अल्लाह पाक हमारे साथ होता है। तहज्जुद का पहला सजदा गम का आखिरी सजदा होता है। सब्र रखो और अल्लाह पाक के फैसलों पर खुश रहो, तुम्हें बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। अल्लाह पाक ने हमें बाज रास्ते बताए हैं, यह घाटे के सौदे हम खुद करते हैं, उसके एक कुन पर हकीकत बदल जाती है। तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले ना मिले रब मिल जाएगा। दुनिया की हर चीज महदूद है, मगर अल्लाह पाक की मोहब्बत लामहदूद है, और अल्लाह पाक तुम्हें यूं खुश कर देगा जैसे तुमने कोई गम देखा ही ना हो। तहज्जुद की दुआओं पर कुन की रहमत होती है। पलक झपकने से पहले अल्लाह पाक हालात तब्दील कर देता है। न उम्मीद मत होना, अल्लाह पाक की रहमत से वो चाहे तो खिला देता है,
फूल सहरा में भी तुझ पर अंधा यकीन है या रब, इसलिए तो खुशगुमान रहती हूँ। तहज्जुद के वक्त अगर आँख खुले तो समझ लो कि बुलावा आसमान से आया है। आप मखली रहें, यही काफी है। अजर तो अल्लाह पाक देगा, नीयत साफ हो तो नसीब भी बदलने लगते हैं। अगर किस्मत का लिखा ही सब कुछ होना होता तो अल्लाह पाक इंसान को दुआ मांगना ही नहीं सिखाता। जो आंसू अल्लाह पाक की आगोश में बहाए जाते हैं, उन आंसुओं का भरम वो कभी भी नहीं तोड़ता। सोच अगर खूबसूरत हो तो अल्लाह पाक तकदीर भी बदल देता है। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पाक पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। तहज्जुद में जिसने अल्लाह पाक को पा लिया, उसने गोया दुनिया जहां का सुकून पा लिया। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का एक काली सा अल्लाह पाक तुम्हारी चाहत से भरना चाहता हो, इसलिए दुआ करो, शायद दुआ ही तुम्हारा मुकद्दर बदल दे। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब कहाँ कैसे यह सब मेरा रब जानता है। अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल मायूस ना हो, बस दुआ करें, क्योंकि वो आपको हर आजमाइश में कामयाबी अता फरमाए। तहज्जुद की तौफीक जब तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हारी हर बिगड़ी जल्द संवर जाएगी। तहज्जुद लफ्ज है वो मुख्तसर, मगर उसमें सुकून बेतहासा है। जैसे हर तकलीफ का एक मरहम होता है, तो दिल की तकलीफ का मरहम तहज्जुद है। तहज्जुद के वक्त यूँ महसूस होता है जैसे अल्लाह पाक मेरे रूबरू बैठकर मेरी जानिब देख रहा हो। मोहब्बत तो यह है कि तहज्जुद में रब से रोज मुलाकात हो। दर्द से ही अल्लाह पाक की पहचान होती है, और यह तड़प ही होती है जो तहज्जुद तक खींच लाती है। तहज्जुद की खामोशी में जार जार बहते हुए आंसुओं का शोर अल्लाह पाक को राजी कर लेता है। तहज्जुद वो आखिरी मरहम है जिसके बाद ना कोई गम सताता है, ना कोई गम रुलाता है। किस कदर पाकीज़ा है उस मोहब्बत का भी दुख जो हमें खजा सजदों में तहज्जुद तक खींच लाता है। और कायनात में ऐसा कोई मर्ज नहीं जिसकी दवा तहज्जुद में ना हो। और फिर तहज्जुद तो दिल का सुकून है, जिन जख्मों को वक्त नहीं भर पाता, तहज्जुद उन जख्मों को भी भर देती है। मैं, मेरा अल्लाह पाक और तहज्जुद की बातें, गहरा अंधेरा और खामोश आंसू, तहज्जुद के लम्हा रूह में सुकून भर देते हैं। तहज्जुद पढ़ने के बाद दिल इतना पुरसुकून हो जाता है जैसे उसमें अल्लाह पाक समा गया हो। तहज्जुद में रब से जो मांग लिया, उन दुआओं पर अल्लाह पाक ने कुन ही कहना है। अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारी चाहत तक ले जाने के जरिए बहुत पहले बना रखे हैं, मगर वो चाहता है कि तुम खुद उन तक आओ, ताकि तुम यकीन रखना सीखो और सब्र से तुम्हारी आसनाई हो सके। वो तुम्हें आजमाइश में डालकर ही तुम्हें सजा नहीं, बल्कि वो तुम्हें हर चीज की हकीकत दिखाकर जिंदगी सिखाता है कि हर एक चीज ने एक रोज वापस लौट ही आना है। जो नसीब में लिखा है वो हर हाल में हर कीमत पर मिलकर रहना है। तुम आज जहाँ हो वहाँ इत्तेफाकन नहीं हो, बल्कि तुम्हारा यह मुकाम तुमसे भी पहले लिख दिया गया था। सो तुम्हें यहाँ तक लाया गया है, और यह भी जान रखो कि उसने मिलने से लेकर ना मिलने तक हर चीज का वक्त मुकर्रर कर रखा है। तुम्हारा काम तो सिर्फ दुआ करना है, बाकी तो सारी उसकी मंसूबा साजी है। तुम उसके मंसूबे के संग चलते जाओ, वो अपने मंसूबों को तुम्हारे मंसूबों की जानिब मोड़ देगा। रास्तों का मत सोचो, बस जहाँ भी पहुँचो वहाँ यकीन के साथ चल दो, और फिर देखना तुम्हारा यकीन ही तुम्हें उस चीज तक ले जाएगा जिस तक पहुँचने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर एक रोज तुम उन तमाम खौफनाक राहों के बंद हो जाने पर शुक्र करोगे जिन पर चलने के लिए तुम बासित थे, और अल्लाह पाक ने तुम्हें रोक लिया। तवील सजदे, बेकरार सांसें और सदियों की जागती आंखें, इन लबों ने की है रब से हजारों बातें, जिनका किसी सूरत में भी वापस आना मुमकिन नहीं लगता, उन्हें भी वापस ले आती हैं। टूटे हुए दिल की फरियाद, बात तो तड़प की है, कोई सोता रहता है गफलत की नींद रात भर, और किसी को तहज्जुद तक खींच लाती है अर्श वाले की यादें।
तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह पाक ने तुम्हें अपने बहुत करीब कर लिया है। तहज्जुद के वक्त उठने वाला इंसान बहुत खुश नसीब होता है जो अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होता है। तहज्जुद मोहब्बत की तकमी है, अल्लाह पाक से मोहब्बत की तकरवा की। नमाज पर इंसान अल्लाह पाक की पुकार पर उसकी जानिब जाता है, मगर तहज्जुद के लिए इंसान पुकार का इंतजार नहीं करता, बस नींद से गाफिल होकर तड़पते हुए दिल के साथ अल्लाह पाक की जानिब सिसकते हुए दौड़ा चला जाता है। शायद इसलिए तहज्जुद फर्ज इबादत का हिस्सा नहीं बनी। यह तो बस वही पढ़ सकता है जिसको अल्लाह पाक से इश्क हो गया हो, ऐसा इश्क जिसके बाद महबूब गुफ्तगू किए बगैर कहीं दिल चैन नहीं पाते, ऐसा इश्क जिसके बाद महबूब के हर हुक्म पर चुपचाप सर को झुका लिया जाता है। तभी तो अल्लाह पाक की सबसे लाडली इबादत तहज्जुद है और उस तक अल्लाह पाक अपने लाडले बंदों को ही रसाई देता है। कभी गम देकर तो कभी रातों की नींद उड़ाकर वो अपने पसंदीदा बंदों की आवाज सुनने के लिए पुकारने के कई बहाने बनाता है। न आजमाइश हमेशा रहती है, न यह मरहला मुश्किल है। वो जो आदिल है वही कफील भी है, वो जो दूर लग रहा है तुम्हें वो तुम्हारे करीब भी है। वो मांगी हुई कोई दुआ रद्द नहीं करता, वो तहज्जुद के सजदों को कभी भी जाया नहीं करता। जहाँ किसी की पहुँच ना हो वहाँ से निकाल देता है। तहज्जुद बहुत ताकतवर इबादत है क्योंकि यह सवाब या गुनाह के खौफ से आजिज़ी है। तहज्जुद तक इंसान तब पहुंचता है जब सारी हसरतें दिल का साथ छोड़ देती हैं। फिर इंसान यह नहीं सोचता कि कितना सवाब मिलेगा या कितने गुनाह मिट जाएंगे, तब बस इंसान यह सोचता है कि अल्लाह पाक मिलेगा, अल्लाह पाक से मुलाकात होगी। फिर तहज्जुद का पहला सजदा आखिरी सजदे की तरह किया जाता है, जैसे अभी जान निकल जाएगी, जैसे अभी अल्लाह पाक की मोहब्बत से दिल फट जाएगा। बस फिर हम होते हैं और अल्लाह पाक होता है और फिर वो सब मुकम्मल हो जाता है जो कभी अधूरा रह गया हो। तहज्जुद से बड़ी इसकी कोई दलील नहीं। जिन दुआओं की इब्तिदा तहज्जुद से हो जाए उन दुआओं की ताबीर बड़ी कमाल की होती है। तहज्जुद बहुत लाडली इबादत है और इस इबादत तक जो पहुंच गया वो अल्लाह पाक का लाडला बन गया। और अल्लाह पाक कैसे अपने लाडले की दुआ रद्द कर सकता है। तहज्जुद अल्लाह पाक की सबसे लाडली इबादत है जो सिर्फ उसके लाडले बंदों को ही नसीब होती है, जिनसे वो मोहब्बत करता है। और जिसके नसीब में तहज्जुद का सजदा लिख दिया जाता है उसके नसीब में अल्लाह पाक का प्यार लिख दिया जाता है। आपका तहज्जुद तक तो आना इस बात की दलील है कि आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। तहज्जुद के वक्त आपकी छोटी सी छोटी पुकार भी सीधा अर्श तक जाती है। जब आप अपने रब से मुखातिब होते हो तो आपका रब कहता है, मांगो जो मांगना है मैं सुनूंगा, कौन सी फरियाद लाए हो मुझसे मांगो मैं पूरी करूंगा। फिर जिस पल आपके हाथ अपने रब के आगे उठते हैं आपकी जुबान से निकली हर एक दुआ पर कुन कह दिया जाता है। सोचो अगर उसने दुआ कबूल करनी ही ना होती तो वो तुम्हें तहज्जुद तक लाता ही क्यों। यह ना सोचो कि तहज्जुद में मांगने के बाद भी हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह पाक जानता है कि तुम जमाने के सताए हो, आजमाइश कमर तोड़ रही है, मजीद सब्र नहीं होता, लेकिन उसे पसंद आता है तुम्हारा तकलीफ में भी मुस्कुराते रहना। उसे पसंद है तुम्हारा हर बार यह कहना कि अभी तो वो दिन आएगा जब मेरा अल्लाह पाक मेरी दुआ सुनेगा। उसे पसंद है तुम्हारा यह कहना कि मुझे यकीन है मोजज़े होते हैं। तहज्जुद बेचैनियों से राहत है, तहज्जुद टूटे दिलों के जख्मों का मरहम है, तहज्जुद मुस्तरबत देती है। तहज्जुद तो अल्लाह पाक से इजहार मोहब्बत है। तहज्जुद में जुबान नहीं आंसू अल्लाह पाक से बात करते हैं। तहज्जुद मुस्कुराए हुए लोगों का सहारा है। तहज्जुद दुआओं की कबूलियत की जमानत है। रोती भीगती तहज्जुद की 2 रकअत और गिड़गिड़ाती दुआएं दिल भी हल्का कर देती हैं और मुकद्दर भी बदल देती हैं। सुनो जब भी तुम तन्हा महसूस करो और यह समझो कि कोई नहीं है जिसे तुम अपना दर्द बयां करो, करके दिल को हल्का कर लो। कर सको तो सीधा जा नमाज की तरफ रुक कर लेना। यकीन मानो वो जो रब है वही बड़े प्यार से तुम्हें सुनेगा और जब तुम उनके सामने टूट के रेजा रेजा हो जाओगे तो वो तुम्हारी जात को अपनी रहमत से समेट लेगा और अपनी मोहब्बत से तुम्हें मुकम्मल कर देगा। इसलिए कभी भी अकेले होने से मत डरना, वो अल्लाह पाक हमेशा आपके साथ आपके करीब है। बस एक बार दिल से उसकी पुकार
उसे पुकार कर तो देखो, वो दौड़ कर तुम्हें सुनने आएगा। और तहज्जुद तो अल्लाह पाक से मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। तहज्जुद की दुआ मुकद्दर बदल देती है जो दुख सुकून नहीं लेने दे रहे। तहज्जुद ताल्लुक को सुकून में बदलने की ताकत रखती है। जो दुआएं फर्ज नमाज में कबूल नहीं हो रही, वो तहज्जुद की नमाज में कबूल होने की ताकत रखती हैं। तहज्जुद नसीब वालों को नसीब होती है और नसीब को चार चांद लगाने की ताकत रखती है। तुम्हें जो नामुमकिन लग रहा है, तहज्जुद से मुमकिन बनाने की ताकत रखती है। अकेले हो, कोई साथ नहीं देता, तो जान लो तहज्जुद अल्लाह पाक से मिलवाने की ताकत रखती है। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो परेशान ना हो, तहज्जुद मोजिज़ा करने की ताकत रखती है। आंसू को खुशी में, सुकूनी को सुकून में बदलने की ताकत रखती है। अल्लाह पाक कहता है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे, कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे और मैं अता कर दूं, तो जान लो तहज्जुद अल्लाह पाक से उन कहलवाने की ताकत रखती है। रात के आखिरी पहर में की हुई तुम्हारी अल्लाह पाक से बातें तुम्हारे सुकून का बाज बन जाती हैं। जो तुम्हें कभी मिला नहीं, वो तुम्हें सब्र अता करके तुम्हारी बेबसी को ऐसे दूर कर देगा कि तुम्हारे दिल में हकीकी उड़ान पैदा होने लगेगी। उसकी यह चाह है कि तुम उसकी चाह में राजी हो जाओ। तुम्हारा मांगा हुआ एक कतरे को कैसे समंदर बनाकर अता कर देगा, वो तुम समझ ही नहीं सकते। उसकी मसलियतों को देखना, वक्त के साथ साथ वो कैसे तुम्हारा दिल बदल देगा। वहाँ तुम ला इल्म हो, उसकी उस कुदरत मोहब्बत से कभी बिन मांगे नवाज देता है। तो बस कुछ पल का है इम्तिहान, तुम्हारा सब्र कर लो। यह सोच करके यह आजमाइश का वक्त है तुम्हारा, अनकरीब तुम्हारी दुआ बदल देगी नसीब तुम्हारा। अल्लाह पाक ने नसीब बदलना है, अगर वो नहीं बदल रहा दिल तुम्हारा। अल्लाह पाक फरमाता है हर चीज के लिए मुझे याद करो, चाहे वो तुम्हारे हक में बेहतर हो या ना हो, मैं तुम्हें बेहतरीन करके अता करूंगा। अल्लाह पाक फरमाता है मैं बेहतरीन से पहले देर करता हूँ और उन्हीं को आजमाता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। तुम क्यों घबराते हो मुकद्दर के फैसलों पर? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब गफूर रहीम है? अल्लाह पाक कहता है मैं तुम्हारा गुमान हूँ और तुम जैसा सोचोगे अल्लाह पाक को वैसा ही पाओगे। जिनकी उम्मीद सिर्फ अल्लाह पाक से हो वो कभी ना उम्मीद नहीं होते। नामुमकिन तुम्हारे लिए है, अल्लाह पाक के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। सूर काफ हमें सिखाती है जब कुछ ऐसा हमारी जिंदगी में हो रहा है जिसकी समझ ना आए तो सब्र करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं हर चीज की हिकमत फौरन ही समझ आ जाए। कभी कभी बातें वक्त के साथ समझ आती हैं। वक्त सारे राज खोल देता है, वो आजमाता भी है और नवाजता भी है। उसका हर अंदाज खूबसूरत है क्योंकि वो रहमान है, रहीम है। अल्लाह पाक पर तवक्कुल की हदें इस कदर वसी रखो कि अगर तुम्हारी मांगी गई दुआएं ना भी पूरी हों तो तब भी तुम्हारी इबादत, तवक्कुल और दुआओं में कमी न आए। न आजमाइश हमेशा रहती है, न यह मरहला मुस्तकिल है। वो जो आदिल है वही कफील भी है। वो जो दूर लग रहा है तुम्हें वही तुम्हारे करीब भी है। वो मांगी हुई कोई भी दुआ रद्द नहीं करता। वो तहज्जुद के सजदों को कभी जाया नहीं करता। वो खामोशियां भी सुन लेता है लेकिन उसे इजहार पसंद है। बंदे का जब बंदा कहता है ऐ मेरे रब, तो वो मुतवज्जो हो जाता है। जब बंदा कहता है तू बड़ा रहीम है, तो उसकी रहमत जोश में आ जाती है। जब बंदा कहता है अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो वो माफ कर देता है। और जब बंदा गिड़गिड़ाकर कुछ मांगता है तो वो कबूल कर लेता है। दुआओं में सुकून मिलने लगे तो समझो दुआएं कबूल हो गईं, क्योंकि उन दुआओं में अल्लाह पाक की रजा शामिल होती है और मुझे अल्लाह पाक की रजा हो जाने से ही तो होते हैं। यह देर तो बस तुम्हारी दुआओं का इम्तिहान होती है, फिर तकदीर बदल जाती है और कहानियाँ एक कुन से पलट जाती हैं। जरूर कबूल होंगी तुम्हारी दुआएं, यह वादा है तुमसे अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक तुम्हारी बेहतरी के लिए ताकी जरूर करता है, लेकिन वो भूलता नहीं है तुम्हारी दुआओं को और ना अपने वादों को। वो जानता है कि तुम क्या चाहते हो, फिर भी उसे बेतहासा प्यार आता है जब तुम उसे अपनी दास्तां सुनाते हो। तुम्हारी अर्श तक जाती है आवाज उसे बेहद पसंद है, बहुत गौर से सुनता है वो जब तुम उसे पुकारते हो। दर बदर की ठोकरें खाकर जब इंसान अल्लाह पाक के दर तक पहुँचता है तो अल्लाह पाक अपने बंदे को उसकी चाहत से नवाज देता है। सारी हाजत तो उसी के दर से पूरी होनी
دینی ہے، پھر چاہے سب سے پہلے ہو جائے یا سب سے آخر میں، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ہے خوشخبری۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ گزر جائے گی مشکل گھڑی، تم ناراض نہ ہو اللہ پاک سے، تم تو محبوب بندے ہو اس کے، وہ تو نوازنا چاہ رہا ہے تم کو ہر گناہ سے کر کے بری۔ یہ درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائش تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہے، پھر تمہارے درد کی دوا اللہ پاک بن جاتا ہے، پھر تمہارے تڑپتے دل کی شفا اللہ پاک بن جاتا ہے۔ تم خود سوچو کہ تمہارا صبر کیسے رائگا جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ پاک نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ پاک ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ اللہ پاک ہو وہ پھر کبھی بھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ جب تم ناممکن حالات کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ پاک تمہیں معجزوں کی راہ دکھاتا ہے، چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف ڈھکیل دے، تب بھی اگر تم اللہ پاک پر کامل یقین رکھتے ہو تو اللہ پاک تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ اللہ پاک کی مصلحتوں کو جب تم تسلیم کرنے لگتے ہو تو ساری کہانی خود بخدا ہو کیسے سر میں سے بھی وہ خیر نکال دیتا ہے، تم جان کر اس کا شکر ادا کرنے لگتے ہو۔ اپنے سارے معاملات اللہ پاک کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ۔ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ پاک کے کن پر یقین ہے اور آپ کے معجزوں پر یقین ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہ مشکلوں سے گزار کر معجزوں تک لے آئے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے راستے بنا دے، ہو سکتا ہے اسے تمہارا مانگنا پسند آ جائے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر کن کہہ دے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو سکتا ہے کہ مشکلات تمہیں آسانیوں تک لے جانے کا ذریعہ ہوں۔ یقین رکھیں اگر اللہ پاک آپ کو کوئی چیز دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے آپ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی، چاہے معاملات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اللہ پاک آپ کو کوئی چیز نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی وہ آپ کو چیز نہیں دے سکتی، چاہے ساری دنیا اس پر راضی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی آسان کیوں نہ لگے۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ پاک اتنی دفعہ تمہیں دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیر وہ خود بناتا ہے۔ آغاز تلک ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے کام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا تلک تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ وہ جس کا نام الکبیر ہے یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے۔ وہ جس کا نام الودود ہے یعنی محبت کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا۔ وہ جس کا نام الوکیل ہے یعنی کام بنانے والا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن دیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ کس چیز سے پاک کبھی سوچا ہے، وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حال ہو۔ وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روک کر کھڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا۔ وہ جس کا نام السور ہے یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے۔ وہ جس کا نام العلیم ہے یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیت سے بے خبر ہو سکتا ہے۔ وہ جس کا نام الرافع ہے یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے۔ وہ جس کا نام القادر ہے یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل۔ انتظار کی بھی 3 صورت ہوتی ہیں، یا تو اللہ پاک اس لیے انتظار کرواتا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے تمہیں دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے ہو، یا تو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں جس کا تم کب سے انتظار کر رہے ہو، یا تو اللہ پاک کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے اس لیے وہ
चाह रहा है मेरा बंदा मुझसे फरियाद करता रहे। अल्लाह पाक देखता है कि मेरा बंदा मेरे दिए पर शुक्र करता है या फिर उसके लिए मायूस हो जाता है जो नहीं दिया। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिद मुबाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह।